The last lesson is a satire on imperialism/colonialism. The story is also a sharp criticism on the importance of language which the people have forgotten. They have totally neglected their culture and civilization. Language is a national pride for the natives of a country, but unfortunately the citizens of that society have started to neglect that culture. Franz is a representative of common French. Carelessness of the society and the importance of time have been emphasized by the writer. The last lesson is about national pride and regret of the French over their loss of two states. This is also a criticism on imperialism of Germany. I wonder if they are going to compel them to sing in German too. The loss of language is great disaster for any society. First-person narration is used to show the regret of a schoolboy who represents the whole nation. Every character realizes his mistake and regrets his inaction and irresponsibility. Franz, Hamel and the villagers have gathered to remorse their inability to keep freedom and own language. The parents neglected their child's education. The children wasted their time in useless activities. The teachers taught carelessly. The high-ups never visited the school and neglected the foundation of a great society. The French language is a Romance language. It had been the sweetest and strongest language in the history. In the last lesson, through the character of Hamel, the writer has created an idealized teacher. A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops. Hamel was an experienced teacher and central character of the story. He was very strict teacher and punished his students. The villagers respected him for his 40-year service. He regretted his flaws in his last lesson and speech. He was a good orator. He used language effectively to realize his audience. He invoked patriotism and love for French language among his students and villagers. If a building falls due to ignorance of an engineer, it is. आखिरी सबक साम्राज्यत/नौआबादियाती निज़ाम पर तंज़ है। ये कहानी ज़ुबान की अहमियत पर सख्त तनकीद करती है जिसे लोग भूल चुके हैं। उन्होंने अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। ज़ुबान किसी भी मुल्क के बाशिंदों के लिए कौमी फ़ख्र का बाइस होती है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुआशरे के शहरियों ने अपनी सकाफ़त को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। फ़रांस आम फ्रांसीसी अवाम की नुमाइंदगी करता है। मुसन्निफ़ ने मुआशरती बेहिस्सी और वक्त की अहमियत को उजागर किया है। आखिरी सबक एक कौमी फ़ख्र और फ़रांस के दो रियासतों के नुकसान पर अफसोस के जज्बात को बयान करता है। यह जर्मनी की साम्राज्यत पर भी तनकीद है। मुझे हैरत है कि आया वो उन्हें जर्मन ज़ुबान में गाने पर भी मजबूर करेंगे। किसी भी मुआशरे के लिए ज़ुबान का नुकसान एक बहुत बड़ी तबाही है। इस कहानी में पहले शख्स की बयान करदा रुदात के ज़रिए एक स्कूल के तालिब इल्म का अफसोस दिखाया गया है जो पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। हर किरदार अपनी गलती का एहसास करता है और अपनी बेअमली और लापरवाही पर पशेमान है। फ्रांस, हामिल और देहाती सब आज़ादी और अपनी ज़बान को महफूज न रखने पर अफसोस का इजहार करते हैं। वालिदैन ने बच्चों की तालीम को नज़रअंदाज किया। बच्चे अपना वक्त फजूल सरगर्मियों में ज़ाय करते रहे। असातिज़ा ने लापरवाही से पढ़ाया। आला हुकाम ने स्कूल का दौरा तक नहीं किया और एक अजीम मुआशरे की बुनियाद को नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी ज़बान एक रोमानवी ज़बान है। यह तारीख़ की सबसे शीरीं और मज़बूत ज़बानों में शुमार होती थी। आखिरी सबक में मुसन्निफ़ ने हामिल के किरदार के ज़रिए एक मिसाली उस्ताद को पेश किया है। एक उस्ताद हमेशा के लिए असर छोड़ता है, वो नहीं जान सकता कि इसका असर कहाँ ख़त्म होगा। हामिल एक तजर्बाकार और कहानी का मरकज़ी किरदार था। वो एक सख्त गिर उस्ताद था और अपने तलबा को सज़ा देता था। देहाती इसकी 40 साला खिदमत की वजह से इसकी इज़्ज़त करते थे। इसने अपने आखिरी सबक और तकरीर में अपनी कोताहियों पर अफसोस का इजहार किया। वो एक उम्दा खतीब था। इसने अपनी ज़बान के ज़रिए अपने सामीन को बेदार किया। उसने अपने तलबा और देहातियों में फ़्रांसीसी ज़बान के लिए हुब अलवतानी और महब्बत का जज्बा जगाया। अगर एक इमारत किसी इंजीनियर की गफलत की वजह से गिर जाए तो ये मादी नुकसान होता है। अगर एक शख्स किसी डॉक्टर की लापरवाही से मर जाए तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर एक को